Okay, let's start. So, new chapter, portfolio management. Okay, new chapter, portfolio management. It is one of the most important topics for our exam. Conceptual hai, there is no shortcut. Full time has to be given. It is not mechanical like leasing was. Exam wise, somewhere between 15 to 30 marks is the class interval at which it is tested in the exam. Okay, minimum 15, maximum 30. Plus, it has other applications. It comes to use in capital budgeting, it comes to use in several other places. So, indirectly contributes a higher percentage as compared to what directly comes. So let's start it this way. We all know that a portfolio refers to a bundle of securities. A portfolio refers to a bundle of securities. The objective of portfolio management is to construct the optimum portfolio. Optimum portfolio is defined as the portfolio which will give to the investor the highest possible satisfaction. The highest possible satisfaction. यानी आपके पास अगर 5 करोड़ से तो how should the 5 crores be invested such that जो portfolio बना उससे जो satisfaction है वो क्या हो? Highest. Satisfaction is known as utility. Satisfaction is known as utility. So we have to maximize the utility of the portfolio. By common sense, without any background, you know that if there are two portfolios और दोनों में से एक portfolio का return higher है और दूसरे का return lower है, तो which portfolio provides higher satisfaction? Higher return. Once again, अगर दो portfolio है और दोनों में से first वाले का risk कम है और second वाले का risk ज़्यादा है, तो which portfolio provides higher utility? First वाला जिसका risk क्या है? कम है. तो कुछ basic intuitions are something that are embedded in the mind of everybody without a study of SFM. कि we love higher returns, we hate what? Risk. ठीक है? However, अपना requirement is not to just have those intuitions of return and risk. We are supposed to quantify return and risk, measure them, okay, and actually construct the portfolio. So the demand is highly mathematical as compared to just basic understanding of risk and return. Okay? We will be measuring return. We will be measuring return with the help of mean. With the help of mean. Mean माने average return, expected return, and we will be measuring risk with the help of variability, volatility, okay, volatility known as standard deviation, which means at this stage if I tell you that the expected return of my portfolio is 20% and the SD of the portfolio is 8%. Expected return of my portfolio is 20%, SD of the portfolio is 8%. इसका मतलब 20% आपको ऑन एन एवरेज मिलने वाला है कि 20% पक्का मिलने वाला है? ऑन एन एवरेज. इट इज जस्ट एन एवरेज. इट इज अ मीन. 20% इज नॉट सर्टन. इट इज व्हाट? अनसर्टन. इट इज द मीन. तो इन दैट केस द रिटर्न कुड बी 20 से हायर, द रिटर्न कुड बी 20 से लोअर. 20 से ऊपर नीचे मारेगा. 20 से ऊपर नीचे एवरेज में कितना मारेगा? 8. एवरेज में 8 का ऊपर नीचे मारेगा. तो इसका मतलब एवरेज में ऊपर की तरफ कितना? 28, 28 और नीचे की तरफ कितना? 12. But don't take it otherwise. I am not saying that the return will therefore lie between 12 and 28. Wrong statement. But the statement would be the return will on an average lie between 12 and 28. On an average. ठीक है? तो 12 और 28 के बीच में अगर 2 SD का मूवमेंट माने, कितना SD? 2 SD. 2 into 8 कितना हो गया? 16. 16 ऊपर की तरफ मारा तो 20 प्लस 16 कितना? 36. और 16 नीचे मारा तो 20 माइनस 16 कितना? 4. तो 4 and what? 36. ओके, ऑन एन एवरेज नहीं हुआ. ये हुआ 2 times SD. ये हुआ 2 times SD. SD मतलब ऑन एन एवरेज. ये भी मीन है, ये भी मीन है, ये दोनों मीन है. ये रिटर्न का मीन है. किसका मीन है? रिटर्न्स का. ये रिटर्न्स का मीन है और ये मूवमेंट का मीन है. ये क्या? मूवमेंट अवे फ्रॉम द मीन का, मूवमेंट अवे फ्रॉम 20% का मीन है. कभी कभी मूवमेंट अवे फ्रॉम द मीन 5 है, 25. कभी कभी मूवमेंट अवे फ्रॉम द मीन 12 है, 32. कभी कभी मूवमेंट अवे फ्रॉम द मीन 40 है. तो कितना मूवमेंट हो गया? 60. मतलब रिटर्न
तो वो जो मूवमेंट हो रहा है अवे फ्रॉम द मीन, उसका एवरेज इज व्हाट 8. ठीक है. तो वंस अगेन we will be measuring return with the help of expected return, that is what mean, and we will be measuring risk with the help of standard deviation. Risk with the help of standard deviation. ठीक है. It is necessary that the student feels comfortable while looking at these numbers, and that comfort level will come only if you at elementary stages wait back and speak out. इसका मतलब है on an average return of the portfolio is what 20%. And on an average, the volatility around the mean is equal to what 8. 8 ऊपर 8 नीचे, 28 और 12. ठीक है. पर 28 को ऊपर तोड़ सकता है क्या? Yes. 12 को नीचे तोड़ सकता है क्या? Yes. Okay, because 2 SD का मूवमेंट, 3 SD का मूवमेंट, 4 SD का मूवमेंट. ठीक है. It is 1 SD. ठीक है. तो और डिस्कशंस विल फॉलो, बट एक बार मेरे को बेसिक लेवल पे बताना जरूरी था. रिकैप करते हो. I said what is a portfolio? A portfolio is a bundle of securities. What is the objective of portfolio management? The objective of portfolio management is to construct what portfolio? Optimum portfolio. ठीक है. एकदम to the point discussion कर रहा हूं. Optimum portfolio is defined as the portfolio with the highest possible utility. ठीक है. Utility is a positive function of return and negative function of risk. Utility is a positive function of return and negative function of risk. Mathematically, return will be measured in terms of mean, and risk will be measured in terms of standard deviation, that is deviation from the mean. For all common sense people, risk का मतलब deviation नहीं होता है. Okay, because अगर return 20 के बजाय 30 हुआ, तो in that case लोग उसको risk नहीं मानते हैं. 20 के बजाय 10 हुआ, तो वो risk होता है ना. रिस्क को मनी मन में अपने क्या मानते हैं? लॉस. तो 20 के बजाय 25 आ रहा है तो क्या हर्ज है? 20 के बजाय 15 आ रहा है तो वो रिस्क होता है ना. However, the portfolio chapter doesn't run that way. They have defined risk as volatility, whether favorable or unfavorable. Please remember, ठीक है, confusion नहीं हो जाए. Risk for the purpose of academic discussion is volatility. 20 के ऊपर है वो भी volatility है, 20 के नीचे है वो भी volatility है. जबकि real life में investors consider risk to be unfavorable movement. What movement? Unfavorable movement. तो yes, I do acknowledge that portfolio theory जो अपने को study करने का responsibility है, it has a serious loophole. It is misspecifying risk. ठीक है, क्योंकि रिस्क का मतलब केवल डाउनवर्ड अनफेवरेबल मूवमेंट होना चाहिए था. ठीक है ना. तो आप ध्यान रखना, रिस्क का एकेडमिक डेफिनेशन बोथ साइड मूवमेंट से. ओके, विच इज वेरी वेरी इनकंसिस्टेंट विथ व्हाट रिस्क का परसेप्शन अपने को रियल लाइफ में है. ठीक है. तो अपने को पूरे चैप्टर में करना क्या है? वी हैव टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी विच इज अ फंक्शन ऑफ expected return and what? Risk. Expected return and risk. Expected return के ऊपर प्लस दे रहा हूं, रिस्क के ऊपर माइनस. तो हाउ डू यू रीड दिस? यूटिलिटी इज अ पॉजिटिव फंक्शन. यूटिलिटी इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ रिटर्न. हायर द रिटर्न, हायर द सेटिस्फैक्शन. एंड यूटिलिटी इज अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ रिस्क. हायर द रिस्क, लोअर द सेटिस्फैक्शन. ठीक है. किसको मैक्सिमाइज करना है? रिटर्न को कि रिस्क को कि यूटिलिटी को? यूटिलिटी को. रिटर्न को मैक्सिमाइज नहीं करना है चैप्टर में, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, विच डिपेंड्स अपॉन बोथ रिटर्न एंड रिस्क. The square of standard deviation is called variance. What is it called? Variance. 8 का स्क्वायर 64% स्क्वायर. 8% है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 64% स्क्वायर. बट बोलने में ज्यादा नेचुरल कौन सा है? 8% या 64% स्क्वायर? 8% इज मोर नेचुरल ना. तो एक्चुअली व्हेन वी डिस्कस इट मोर डीपली आगे बढ़ते हुए, यू विल अंडरस्टैंड कि वेरिएंस पहले आया, उसके हेल्प से एसडी आया, एसडी से वेरिएंस नहीं आया. माने द प्राइमरी वेरिएबल इज वेरिएंस. सिंस इंटरप्रेट करने में लोगों को तकलीफ होगा, देयरफॉर स्क्वायर रूट मार के क्या किया गया? एसडी. ओके, सिंस एसडी अच्छे से समझ में आता है, देयरफॉर एसडी का बात चलता है. वरना दिस एंटायर थियरी इज कॉल्ड मीन वेरिएंस थियरी. व्हाट थियरी? मीन वेरिएंस थियरी. MVT, मीन वेरिएंस थियरी. Because according to this theory, utility depends upon the mean and the variance. But since variance is difficult to understand, we take a square root, and that square root is called what? SD, standard deviation. I have not discussed formulas. ठीक है, हम फॉर्मूला पे स्ट्रेस अभी नहीं दे रहे. ओके, तो इन दैट केस मेरे लैंग्वेज में लेट्स स्लो डाउन द प्रोसेस टू द एक्सटेंट पॉसिबल एंड पास सम टाइम. टाइम पास कर रहे देखना. केस 1,
दो पोर्टफोलियोज है ए और बी, दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क दिया हुआ है। दो पोर्टफोलियोज ए और बी, दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क दिया हुआ है। ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न 20%, रिस्क 8%, बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न 25%, रिस्क 8%. तो in that case, which portfolio should we choose? B. Is there any doubt about it कि सर शायद? No. ठीक है, there is no doubt. Same risk है और return क्या किस पे ज्यादा है? B में. तो in that case, which would be preferred? B. ठीक है, no calculation required. ठीक है, argument से आंसर होगा. Case 2. Portfolio A, portfolio B. Expected return and risk. एक्सपेक्टेड रिटर्न ए का 20, बी का 20, रिस्क जो है ए का 5 और बी का 8, ए, ठीक है, ए इज बेटर बिकॉज दोनों का सेम रिटर्न है और ए का लोअर रिस्क हाई यूटिलिटी. थर्ड केस, सॉरी, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क ए बी, इसका 20%, इसका 30%, इसका 8%, इसका 6%. बी, कैलकुलेशन रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड? नॉट रिक्वायर्ड. दोनों मामलों में बी बढ़िया दिख रहा है, हायर रिटर्न एज वेल एज लोअर रिस्क. ठीक है, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड. नंबर 4, ए बी, एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिस्क, इसका 30%, SD 8, इसका 20%, SD 5. Fight. This case में there is a fight. This is the first case, वहां there is a fight. There is a controversy. Return wise which is better? A. Return wise A is better. Risk wise which is better? B. Return wise A is better. Risk wise B is better. ठीक है, जितना मैथमेटिकल पिकअप इंडियन स्टूडेंट्स का होता है, हमारे तुम लोग का है, अगर ये एग्जाम में भी आता ना तब भी कोई कोई बुद्धि लगा के अल्टीमेटली आंसर दे देता. कुछ कुछ ब्रेन्स, कॉमन सेंस लोगों का लग चुका होगा. इन द सेंस, व्हाट कुड वी डू ओवर हियर टू रिजॉल्व द कंट्रोवर्सी? एनी एडवाइस, क्या करें? एनी एडवाइस, कुछ क्या करें देखने के लिए अल्टीमेटली किसके फेवर में जाएं? एक पर्सन बोल रहा है 30 - 8 कर दो तो आ रहा है 22 और 20 - 5 कर दो तो क्या आ रहा है 15. तो एज एफ आ रहा है रिटर्न माइनस रिस्क, बट ऐसे रिटर्न माइनस रिस्क ना कुछ होता नहीं. मतलब डिवाइड बाय कोई बोल रहा है, कोई डिवाइड बाय बोल रहा है 30/8. 30/8 का लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क. 30/8 का लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क ना. 30/8 कितना है? 30/8 कितना है? 3.75. मतलब एक रिस्क पे 3.75 रिटर्न मिल रहा है और 20/5 क्या है? 4. तो एक रिस्क पे 4% रिटर्न मिल रहा है. तो दैट वे विच इज बेटर? बी. बी इज बेटर ना. हायर रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, हायर रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क. ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज दैट इट इज परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने जो आपने बोला वो एकदम सही है, बट रिटर्न बाय रिस्क, मीन बाय एसडी का कुछ नाम नहीं होता है. मीन बाय एसडी का कुछ नाम नहीं होता है. इंस्टेड एसडी बाय मीन, क्या? एसडी बाय मीन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन सीपीटी में किया हुआ है. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब जो रिस्क है ना, रिस्क 8%, वो 30 का कितना परसेंटेज है? 8/30 इंटू 100. 8/30 इंटू 100 हाउ मच? 26.67. और यहां पे 5/20 इंटू 100 25%. तो रिस्क 26.67% और रिस्क 25%. विच इज बेटर? बी. रिस्क बाय रिटर्न बोले ना, रिस्क बाय रिटर्न, तो लोअर द बेटर. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लोअर द बेटर, लोअर द बेटर, लोअर द बेटर. इज ओके विथ यू? तो अगर फाइट हुआ, फाइट को हम लोग बोलते हैं पॉस्ट लैंग्वेज में ट्रेड ऑफ. व्हाट? ट्रेड ऑफ. ए एंड बी आर कॉम्पिटिटिव, ए एंड बी आर कॉम्पिटिटिव. रिटर्न वाइज ए इज बेटर, रिस्क वाइज बी इज बेटर. बाकी जो तीनों केस दिखाए तो उसमें कॉम्पिटिशन था ही नहीं, उनमें तो क्लियरली एक बढ़िया था. उनमें अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालोगे तो वो मार्क्स काटेगा, बिकॉज वो मार्क्स दे रहा है रीजनिंग का और तुम उसको कैलकुलेशन दे रहे हैं फालतू का. ठीक है, यहां पे देयर इज अ फाइट. देयरफॉर क्या निकालें? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन?
SD by mean into 100.